ભુજની દૂન પબ્લિક સ્કૂલના ઉપક્રમે આંતર સ્કૂલ વિજ્ઞાન પ્રદર્શન ઇગ્નાઇટ 4.0નું સફળ આયોજન કરાયું હતું, જેમાં કચ્છના માંડવી, મુન્દ્રા, ગાંધીધામ, ભુજ વગેરે શહેરોની 25 જેટલી જુદી જુદી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો હતો. કચ્છના બાળ વૈજ્ઞાનિકોએ 50થી વધુ ઇનોવેટિવ પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યા હતા. દૂન પબ્લિક સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર સારિકા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે વિજ્ઞાન પ્રદર્શન આયોજનનો હેતુ બાળકોમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે અભિરુચિ વધે અને સંશોધન ક્ષેત્રે તેમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવાનો છે. દૂન પબ્લિક સ્કૂલ દ્વારા અગાઉ 3 વખત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન આયોજન સફળતાપૂર્વક કરાયા હતા. આવનાર વર્ષોમાં દૂન પબ્લિક સ્કૂલ ઉપરાંત કચ્છની વિવિધ શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે તેમની પ્રતિભાના દર્શન કરાવવા પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવશે. ઇગ્નાઇટ 4માં 25 જેટલી જુદી જુદી સ્કૂલના બાળકોએ 50થી વધુ પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યા છે. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બાળકોને બાલ્યાવસ્થાથી જ વિજ્ઞાન અને સંશોધન માટે પ્રોત્સાહન મળે તેવું વિઝન ધરાવે છે. તેમના વિઝનને ધ્યાને લઈ દૂન પબ્લિક સ્કૂલ દ્વારા બાળ પ્રતિભાઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં બાળકો ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે. સાથે જ તેમના વિજ્ઞાનના વિષય પ્રત્યે અભિરુચિ પણ વધે છે. વિજ્ઞાન પ્રદર્શન આયોજન થકી બાળકોના મગજનો વિકાસ થાય છે અને આ આયોજન અભ્યાસમાં પણ ઉપયોગી બને છે. અમરચંદ સિંઘવી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ જુનિયર અને સિનિયર બંને કેટેગરીમાં પ્રભાવશાળી બીજું સ્થાન મેળવ્યું હતું. જુનિયર કેટેગરીમાં જહાન લાડકાણી અને વીરરાજસિંહ જાડેજાએ શાળાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. સિનિયર કેટેગરીમાં હર્ષ લાલવાણી અને ઋષિરાજસિંહ ઝાલાએ ભાગ લીધો અને બીજું સ્થાન પણ મેળવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓને દીપક ચેલાની દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ગાંધીધામની અમરચંદ સિંઘવી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના છાત્રએ વડાપ્રધાન મોદીના સ્વચ્છ ભારત મિશનને ધ્યાને લઈ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે સાયન્સ પ્રોજેક્ટ કર્યો હતો, જે ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં શાળાના આચાર્ય, ટ્રસ્ટી મંડળ અને શિક્ષકોનો સહયોગ મળ્યો હતો. સેવી ઇન્ટરનેશનલની છાત્રાએ થર્મોકોલના વૈકલ્પિક ઉપકરણનો પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યો હતો. દિવ્ય બ્રહ્મલોક એકેડમીના છાત્રએ સોલાર આધારિત ઇરિગેશન સિસ્ટમનો પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યા હતા. પરંપરાગત ઇરિગેશન સિસ્ટમમાં ઈંધણ અથવા ઉર્જાનો વપરાશ થાય છે, જ્યારે સોલાર ઇરિગેશન સિસ્ટમ સંपूर्णपणे सूर्य ऊर्जा आधारित होवाથી पर्यावरणનું પણ જતન થાય છે. आज हमारे स्कूल में इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन अंडर अटल टिंकरिंग लैब आयोजित किया जा रहा है. ये चौथी बार है. दिस इज इग्नाइट 4.0. हम इससे पहले 3 बार और करा चुके हैं और हर बार ये नया कुछ करने की कोशिश करते हैं हम. इसमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लगभग 20 स्कूल आए हैं, गांधीधाम, मुंद्रा, मांडवी से. और हमारा ये मानना है कि बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है. कच्छ के बच्चों में भी बहुत जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है और साइंस और इनोवेशन को हमें आगे बढ़ाना है. मोदी जी भी कहते हैं कि आप इनोवेशन को बढ़ावा दीजिए और कच्छ उनका प्रिय डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके आशीर्वाद से और बाकी सब पेरेंट्स और जितने भी ट्रस्टीज़ हैं, चेयरपर्सन मिसेस नेहा ठक्कर मैम, प्रो वाइस चेयरपर्सन मिस्टर दीपेश ठक्कर सर, हमारे ट्रस्टी मिस्टर अवनीश ठक्कर सर, पेट्रन मिसेस काजल ठक्कर, मैनेजर सर आकाश सर, इन सब के विजन से हम ये 4 साल से लगातार इस आयोजन को करते आ रहे हैं. Today our model name is solar irrigation system. We know so traditional irrigation system uses diesel and electricity, means fossil fuel that is non-renewable and extinguished, और वो एक्सटिंग्विश्ड फास्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत बिगाड़ आता है. और साथ में ऐसा होता है कि कभी कभी फार्मर्स जो जहाँ पे खेती कर रहे होते हैं वहाँ पे बारिश का कम आना, सूरज का कभी कभी ना होना, ऐसी समस्याएं होती रहती हैं. पर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें ये सब कुछ जब होता है तो अभी एक फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. पर अभी जो एक नया सोलर इरिगेशन मॉडल आया है इरिगेशन की सिस्टम में, वो अपनी एनर्जी को और अपने वाटर सिस्टम को स्टोरेज करेगा. यानी कि जब भी ऐसी समस्याएं आए जहाँ पे आपको सूरज की रोशनी ना मिले, शायद से आपकी पानी की कमी हो जाए, कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो आप एकदम अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं. इस साइंस एग्जीबिशन में आपको कई सारे इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिलेंगे. जो बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके. सारे प्रोजेक्ट AI बेस्ड है, प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उन पे बेस्ड है. मतलब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिलेंगे. मैं KP स्कूल से आई हूँ और हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपको तो पता ही है कि पोल्यूशन कितना क्रिएट होता है प्लास्टिक वेस्ट से. तो
उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इस प्रोजेक्ट में हम पहले प्लास्टिक वेस्ट को जलाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट को जलाने के बाद उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे हम आसपास में थर्मो इलेक्ट्रिकल पैनल्स रखेंगे। वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो थर्मो इलेक्ट्रिकल पैनल्स एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद अब अगर हम उसको जलाएंगे तो ऑब्वियसली स्मोक क्रिएट होगा, धुआं होगा। अब वो धुआं अगर एयर में जाएगा तो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हम उस धुएं को एक फिल्टरेशन यूनिट के थ्रू ब्लैक पिगमेंट में प्रोड्यूस करेंगे, जो कि इंक बनाने के लिए होगा। अब ये सब चीज़ों के बाद थोड़ी सी राख बच जाती है। अब उसको भी हमको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही है, तो उस राख को हम सीमेंट वगैरह बनाने में यूज़ करेंगे, जिससे बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी और इन सब चीज़ों से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही फ़ायदा होगा, पोल्यूशन कम होगा। जैसे कि ये स्कूल हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, मैं अपनी स्कूल का प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि जब मैग्नेट जब है वो एक पाइप में और कॉइल में पास होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हम इसी प्रोजेक्ट को बड़े स्केल पर कर रहे हैं और यही हमारा प्रोजेक्ट है। ये दून पब्लिक स्कूल जो ऑर्गेनाइज करती है बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है नई नई चीज़ें के लिए। थैंक यू। आज हम ये प्रोजेक्ट लाए हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन का। इसमें हमने श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम दून पब्लिक स्कूल में ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इग्नाइट 4.0 एक कंपटीशन है, उसके लिए हमने नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव स्वच्छ भारत मिशन से वो इंस्पायर होके ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें जब भी कोई हर घर एक एरिया है, जब भी कोई भी घर के एरिया कोई भी एरिया का डस्टबिन अगर फुल हो जाएगा तो ये सेंसर नगर पालिका को मैसेज देगा कि गार्बेज कलेक्टर व्हीकल को उधर भेजे और अपना वहाँ से गार्बेज कलेक्ट करे। फिर वो इस वेस्ट सेग्रीगेशन मॉडल में सेंसर्स के द्वारा यहाँ से वेस्ट डिवाइड होगा 3 पार्ट में, ड्राई, वेट और मेटल। तो जो ड्राई और मेटल वेस्ट है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और जला के, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं जो यहाँ पे लाइट को पावर करेगा। और वेट वेस्ट कंपोस्ट में बना सकते हैं जो खेत में और दूसरी जगह पे हम डाल सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे हर साल साइंस एग्जीबिशन होता है, 4 साल से हो रहा है। ये इग्नाइट 4.0 यहाँ बाहर से स्कूल्स आती है, वो साइंस प्रोजेक्ट लेके, इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट लेके, और इस प्रोग्राम का मेन एम है कि हम यंगर माइंड को डेवलप करें, फ्यूचर उनका ब्राइट हो। और यहाँ पे 28 प्रोजेक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है और 20 प्रोजेक्ट डिस्प्ले में है जो हमारे स्कूल से ही है, और यहाँ पे बहुत सारी स्कूल बाहर से भी आई है। तो ये सब प्रोग्राम के पीछे स्पेशल थैंक्स टू आवर चेयरपर्सन नेहा ठक्कर मैम एंड आवर प्रो वाइस चेयरमैन दीपेश ठक्कर सर, और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सारिका शर्मा मैम, और हमारे मैनेजर आकाश शर्मा सर। हर साल हम ये प्रोजेक्ट बच्चों के माइंड को डेवलप करने के लिए करते हैं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। आज हम यहाँ पर दून पब्लिक स्कूल में आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन है जिसमें हमने थर्माकोल का ऑल्टरनेटिव बनाया है। इसका उद्देश्य यह है कि जहाँ पर थर्माकोल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एकदम बायोडिग्रेडेबल है। थर्माकोल को जहाँ डिकम्पोज होने में 2000 साल लगते हैं, हमारा प्रोडक्ट केवल 60 दिन में डिकम्पोज हो जाता है। थर्माकोल बर्न करने पे हार्मफुल गैसेस निकलती है, पर वहीं पे हमारे थर्माकोल में कोई भी ऐसी हार्मफुल गैस नहीं निकलती। इसमें जो पराली है, बेसिकली पराली हमारे दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन कॉज करता है, इसीलिए हमने उसी को लिया है एज अ सोर्स। हम पराली ले रहे हैं और माइसेलियम जो है उसको हम उसमें मिक्स कर रहे हैं, जिससे एक बहुत अच्छा बाइंडिंग फोर्स बनेगा। एंड हम उसको मोल्ड में डाल के फिर ओवन में बेक करके उन दोनों के मिक्सचर से ये हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मश फॉर्म, वो बना रहे हैं, जिसको सिर्फ 60 दिन लगते हैं डीके होने में। मतलब जो थर्माकोल 2000 साल ले रहा है वो सिर्फ 60 दिन में हम इसको यूज भी कर सकते हैं, और एज अ पैकेजिंग मटेरियल हम इसको इन फ्यूचर शायद देखेंगे।